Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nestor Road, Karachi. Today my topic is from second year biology, section 1, functional biology. Section 1 of second year biology, functional biology. Chapter 1, homeostasis. 1.2, osmoregulation. Osmoregulation is one of the most important aspects of the homeostasis. Osmoregulation. It involves maintaining a balance between water and solute contents of the cell. It involves maintaining a balance between water and solute contents of the cell. We are going to discuss this. Water relation of cell. 1.2.1, water relation of cell. Water is used as a biological solvent which drives most of the metabolic activities of a living cell. You all know this is very important. This is the importance of the water. Water is a biological solvent which drives most of the metabolic activities of a living cell. It moves in and out of the cell by a process called osmosis. Through a semi-permeable membrane, it can pass in and out. This is very important, osmosis. It is special kind of diffusion in which water molecules moves from higher concentration towards lower concentration from a plasma membrane through a semi-permeable membrane. This is known as diffusion. This is known as osmosis. It's a special kind of diffusion. Osmosis is a special kind of diffusion in which water molecules move from higher concentration, where the concentration of water is higher, from higher concentration towards lower concentration, where the water concentration is lower. This is known as osmosis. Section 1, functional biology. Second year biology. This, look at the diagram. Look at the diagram. This is very important. It shows the osmosis process of osmosis. Here the concentrated sugar solution, here the solute particle, sugar molecules in the red color, they are in high concentration. Here concentrated sugar solution. This is partially permeable membrane, semi-permeable or partially permeable membrane, and dilute sugar solution here. यहाँ पर dilute sugar solution है. इसमें देखें आप, शुगर के मॉलिक्यूल रेड कम है, पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा है. वाटर मॉलिक्यूल्स आर हायर here. So the arrow shows the water molecules move through this partially permeable membrane into this concentrated sugar solution. The water molecules from higher concentration towards the lower concentration pass through partially permeable membrane. This is the process of osmosis. This is the process of osmosis. It is a special kind of diffusion in which water molecules moves from higher concentration. The concentration of water molecules is here is higher. The blue color के अंदर देखिए ये water molecules से ज्यादा है. यहाँ ज्यादा है water molecule, यहाँ पर कम है. यहाँ से move कर जाएंगे. देखिए arrow show कर रहा है. The arrow shows the movement of water molecule through partially permeable membrane towards lower concentration. Of course, the water concentration here is lower. So the water molecules moves from here to here. This is known as osmosis, the process of osmosis.
second year biology, section 1, functional biology. Balance of water and solutes in the body. This is very important. 1.2.2. Balance of water and solutes in the body. Thermodynamically speaking, the potential energy of water in the region of its higher concentration is greater than its potential energy in the region of lower concentration. The potential energy of water molecules can be termed as water potential. Generally, it can be defined as the capacity of a living system to lose water. The concentration of a solution is biologically expressed either as a water potential in the case of plant के केस में क्या कहलाता है? Water potential of osmotic pressure in case of animal के केस में क्या कहते हैं? Osmotic pressure, which shows relative amount of water and solute in a cell. This shows the relative amount of water and solute in a cell. Thermodynamically speaking, the potential energy of water in the region of its higher concentration is greater. जहाँ उसकी concentration ज़्यादा होती है वहाँ पर उनकी potential energy ज़्यादा होती है, और जहाँ उनकी potential energy in the region of lower concentration, जहाँ उनकी concentration lower होती है उनका potential energy कम होती है. ये simple सी बात है यहाँ पर. अब ये discuss कर रहे हैं हम balance of water and solutes in the body. ये चंद एग्जाम्पल से आगे आप समझ पाएंगे. सेकेंड ईयर बायोलॉजी, सेक्शन 1, फंक्शनल बायोलॉजी. बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी. बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी ये डिस्कस जा रहे हैं. ये देखिए, ये बात है, देखिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई वाटर पोटेंशियल. अभी जो पीछे जिक्र किया बात जो की थी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा तो उसकी हायर वाटर पोटेंशियल होगी, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा तो लोअर वाटर पोटेंशियल होगी, ठीक है. ये आप आ गई यहां पर पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है. यहां पर है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, हायर वाटर पोटेंशियल. जब हायर कंसंट्रेशन होगी इसकी पानी की तो उसकी वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी तो उसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन. दे कैन नॉट पास, यानी कि ये देखिए दिखा रहे हैं कि गुजर नहीं पाया, ठीक, वापस पलट गया. वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास अक्रॉस द पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन. देखिए एरो देखें यहां पर, ये पास हो गया. यहां पर हायर कंसंट्रेशन थी और हायर वाटर पोटेंशियल भी हायर थी, तो यहां से क्रॉस हो गया पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन से, पानी के मॉलिक्यूल्स यहां से गुजर के इस तरफ चले गए जहां पर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थी और वाटर पोटेंशियल भी लो था. तो इस तरफ भी क्रॉस करके वाटर के मॉलिक्यूल्स पास थ्रू दिस पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके यहां पर चले गए. ये प्रोसेस हो रहा है. The potential energy of water in the region of its higher concentration is greater. Potential energy ये बात बताई, डायग्राम भी ये बात शो कर रही है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया. Then its potential energy in the region of lower concentration. ये बात समझाने की यहाँ कोशिश की है. फिर एक और देखिए, वाटर पोटेंशियल. ये डायग्राम देखिए. वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर psi and is expressed in units of pressure. Pressure is a form of energy. आपको सबको पता है pressure is a form of energy. megapascals इसको ऐसे डिनोट करते हैं. यहां पर क्या हो रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है ये देखिए. नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ड्रॉज वाटर इनटू द रूट्स. ये देखें रूट हेयर दिखाएं, और ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और ये जाइलम वेसल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल. यहां से रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल के अंदर जाए तो पानी मौजूद है यहां पर, ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल है, सॉइल के अंदर पानी मौजूद है. लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ड्रॉज वाटर इनटू द रूट्स. नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होने की वजह से पानी अंदर रूट हेयर्स के थ्रू अंदर चला गया. ये बात कर रहे हैं यहां पर. द इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल, देखिए इस बात को समझिए.
द इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूट हियर इज द प्लांट सेल, रूट हियर इज अ प्लांट सेल, ठीक है, इज मोर नेगेटिव देन द प्योर वाटर, यहां पर मोर नेगेटिव है, ठीक है, देन द प्योर वाटर, जो सॉइल के अंदर प्योर वाटर है, बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म हाई सॉल्यूट कंटेंट, क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म हाई सॉल्यूट कंटेंट्स भी है, रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म के अंदर हाई सॉल्यूट कंटेंट्स भी हैं, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द वाटर पोटेंशियल, पानी के इस वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स सेल्स वाया द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वही हो रहा, मतलब सिंपली और आसान अंदाज में इसको अगर इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे ये रूट हेयर है और ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है बनिस्बत इनके रूट हेयर्स और यहाँ पर जो रूट्स के अंदर के सेलों की बनिस्बत बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन पानी है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस का प्रोसेस अभी पीछे आप मैंने समझाया आपको, ऑस्मोसिस के डायग्राम के जरिए पूरा समझाया, तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन जो बात लिखने की है साइंटिफिकली, जो बात आप लिखेंगे किताब में मौजूद है, क्या लिखेंगे, द इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल इज मोर नेगेटिव देन द प्योर वाटर, बिकॉज प्योर वाटर इसका मतलब है इसका वो वाटर पोटेंशियल जो बाहर सॉइल के अंदर जो पानी यहां मौजूद है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, हाई होगा, तो यहां से ही मूव कर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। ये बात कर रहे हैं, इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल इज मोर नेगेटिव देन प्योर वाटर बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म हाई सॉल्यूट कंटेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर हाई सॉल्यूट कंटेंट्स है, पानी बाहर हायर कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर ज्यादा है, ठीक, तो ये यहां पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अंदर चला गया, और इसी तरह बाकी प्रोसेस आपको कोहेजन एडिशन और जाइलम वेसल्स के जरिए ऊपर तक पत्तों तक चला गया, ये सारा प्रोसेस हो गया। ये बात समझाने की यहां कोशिश की है जो हमारा टॉपिक है मेन। अब देखें, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, वही बात चल रही है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, वही पीछे भी डायग्राम में चली हो जो हमने बातें चंद डिस्कस की अभी, और मजीद देखिए, इन केस ऑफ प्लांट सेल, इन केस ऑफ प्लांट सेल द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सेप सॉल्यूशन इन द वैक्यूल इज टर्म एज सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो उस सेल सेप का है उसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना, ऑफ सेल सेप, सेल के अंदर सेल का जो मटेरियल है उसको सेल सेप कहते हैं, उसको कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन द प्योर वाटर, एक प्लांट सेल को प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर के अंदर डाल दें और सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है, कोई और चीज नहीं है, कोई सॉल्ट, कोई शुगर, कोई चीज कुछ भी नहीं है उसके अंदर, से वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना, हायर वाटर पोटेंशियल, वो पानी कैसा है, हाई वाटर पोटेंशियल वाला पानी है। देन द सॉल्यूशन इन इट्स वैक्यूल, then the solution in its vacuole, यानी कि इसके अंदर when a water placed in a pure water of solution of higher water potential than the solution of its vacuole, इसके मुकाबले में, ठीक है, यानी कि प्योर पानी के अंदर डाल दें, the water moves from outside into the inside, ठीक है, from higher concentration to the lower concentration, जो बात समझाइए, the cell and osmosis and ultimately into the vacuole के अंदर चलेगा। as a result the cell swells, फूल जाएगा, सेल फूल जाएंगे, become टर्जिड, पूरे फुल कैपेसिटी के अंदर उसके अंदर पानी भर जाएगा। अभी हम डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाऊंगा आगे। सच एन एक्सटर्नल सोल्यूशन इज कॉल्ड, ऐसा बाहर का ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। फर्दर अलाउइंग द सेल इनटू सच हाइपोटोनिक मीडियम डज नॉट कॉज इट टू बर्स्ट, अच्छा पानी मजीद नहीं आता रहता, अंदर आता रहेगा, फूल जाएगा, टर्जिड होगा, यानी फुल कैपेसिटी में पानी उसके अंदर सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर भर जाएगा, लेकिन फट नहीं जाएगा। क्यों नहीं फटेगा, बिकॉज द सेल वॉल डेवलप्स अ टेंशन causing an internal hydrostatic pressure or pressure potential, due to which further uptake of water in cytoplasm is resisted and finally stop। ये प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वो फट नहीं जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, फट नहीं जाएगा, ये प्रोसेस हो रहा है।
तो हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बॉडी। अभी हम प्लांट सेल के अंदर डिस्कस किया, जो अभी पीछे डिस्कस किया उसकी डायग्राम आप देखें। व्हाट हैपेंस इन द सेल इन प्योर वाटर, यानी कि अभी मैंने जिक्र किया था प्लांट सेल को एक प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर के अंदर आप डाल दें तो क्या होगा, एनिमल सेल विल इवेंचुअली बर्स्ट, हीमोलाइज। एनिमल सेल तो हीमोलाइज होगा, एनिमल सेल बर्स्ट ओपन, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर भी पानी जा रहा होगा, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वाटर मूव्स इन बाय ऑस्मोसिस। ये देखो ऑस्मोसिस का प्रोसेस बहुत अहम है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बहुत अहम है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, प्योर वाटर में डाला है ना आपने, प्योर सेल सेप के अंदर सोल्यूट्स की मिकदार ज्यादा है, यहां पानी अंदर चल जाता रहेगा, जाता रहेगा। वाटर मूव्स इन बाय ऑस्मोसिस डाउन अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। प्लांट सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग मेम्ब्रेन पुशेस अगेन द मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल prevents bursting membrane pushing against the wall, यानी कि मेम्ब्रेन पुशिंग अगेंस्ट द सेल वॉल की तरफ पुश हो जाएगी, द सेल बिकम टर्जिड। तो प्लांट सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग, ये बच जाएगा इससे। प्लांट सेल स्वेलिंग, फूल गया, साइटोप्लाज्म वैक्यूल विल पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, ये देखिए ये बहुत अहम है, सेल वॉल which will stop the cell getting any large, turgid होने से बचा लेगा। ये this is the reason ये burst नहीं होगा, this is the reason the plant cell will not burst but the animal cell will burst। what happens to the cell in pure water, ये हो रहा है प्रोसेस यहां पर। if a plant cell is placed in a pure water or solution of higher water potential then the solution in its vacuole, उसके वैक्यूल के अंदर के निस्बत हायर वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। द वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड द सेल एंड ऑस्मोसिस एंड अल्टीमेटली इनटू द वैक्यूल, एज ए रिजल्ट सेल स्वेल्स और बिकम टर्जिड, या टर्जिड हो जाएगा सेल। देखिए सेल की पहले कैसा था, या और मजीद फूल गया, पानी अंदर आ गया तो टर्जिड हो गया, सेल बिकम टर्जिड। फर्दर अलाउइंग द सेल इनटू सच हाइपोटोनिक मीडियम डज नॉट कॉज इट टू बर्स्ट बिकॉज the cell wall develops a tension causing an internal hydrostatic pressure। it will develop an internal hydrostatic pressure or pressure potential, इसको क्या कहते हैं, pressure potential, due to which further uptake of, पानी मजीद नहीं आएगा, further uptake of water in the cytoplasm is restricted and finally stops, ये रुक जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, फटेगा नहीं, प्लांट सेल फटेगा नहीं, एनिमल सेल फट जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है यहां पर प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ये सूरत हाल हो। अब मजीद देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वही बात, इसी ये एक और मजीद एक और डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। एक और डायग्राम देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए। देखें पानी अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ अंदर जा रहा है, पानी अंदर है, H2O पानी अंदर जा रहा है वैक्यूल, और सेल टर्जिड हो गया, सेल फुल पानी से भर गया, फुल पानी से भर गया का मतलब टर्जिड हो गया, फुल पानी से भर गया मतलब टर्जिड हो गया। If a plant cell is placed in a pure water or solution of higher water potential than the solution in its vacuole, the water moves from outside to inside the cell and osmosis and ultimately into the vacuole। as a result the cell swells, फूल जाएगा, cell swells or become turgid। such an external solution is called hypotonic, in which water is moving into the cell and cell become turgid। hypotonic solution, cell in hypotonic solution। if some animal, अब एक और बात देखिए एनिमल सेल की भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि if some animal cell is continuously placed in hypotonic solution, अभी आपने पीछे डायग्राम में क्या देखा, प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालें तो क्या सूरत हाल होगी, ये भी देख लें। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ सम एनिमल सेल इज कंटिन्यूअसली प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन इट बर्स्ट, ये पीछे डायग्राम में भी समझाया, देखें सेल एनिमल सेल फट गया था, बस क्या वजह, बिकॉज क्या वजह क्या है, because the plasma membrane cannot resist the pressure potential, plasma membrane cannot resist the pressure potential, ये वजह है, ठीक है, ये वजह है, एनिमल सेल फट जाएगा।
Thus, within the bodies of higher animals, the tissue fluid, ये बहुत अहम बात है. देखें टिश्यू फ्लूइड की बात है. टिश्यू फ्लूइड इज मेंटेन एट द सेम वाटर पोटेंशियल कॉल्ड आइसोटोनिक एज द सेल सोल्यूशन. ये बहुत अहम है. इसकी वजह से एनिमल सेल्स फटते नहीं. तो टिश्यू फ्लूइड इज मेंटेन एट द सेम वाटर पोटेंशियल कॉल्ड आइसोटोनिक, वरना तो सारे सेल फट जाएं. एज अ सेल सोल्यूशन ये मेंटेन करते हैं. व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक और दूसरी बात है, द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और हाइपरटोनिक. पहले क्या बात थी, हाइपोटोनिक में रखा था. अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर अगर प्लांट सेल को रख दें तो क्या होगा. देयर इज ए नेट वाटर मूवमेंट, देयर इज ए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल. अब पानी सेल से बाहर आ जाएगा. एज अ रिजल्ट द सेल बिकम फ्लैसिड. अभी आप डायग्राम में दिखाएंगे, समझाएंगे आपको. डायग्राम में देखिएगा. अब बात कर रहे हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की. अंडर सच कंडीशन द साइटोप्लाज्म विद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक्स फ्रॉम द सेल वॉल. बाहर आ जाएगा पानी. हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये बात हो रही है. दिस कंडीशन कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइज हो जाएगा सेल. कैसा हो जाएगा, सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज. ये बात थी वो जो प्लांट सेल, एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा था, पानी अंदर आ गया था और वो बर्स्ट हो गया था. ये वो वाली बात थी. एनिमल सेल को इन्होंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा था, रप्चर्ड हो गया, वो बस्ट हो गया था. ठीक है, एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो बस्ट के रीजन भी मैंने पीछे सारी तफसील बता दी. तस्वीर के जरिए भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया. जो बात की है वो तस्वीर के जरिए यहाँ समझ में आ गई. ठीक है, एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बस्ट हो रहा है. ठीक है. If some animal cell is continuously placed in hypotonic solution, it bursts because the plasma membrane cannot resist. पीछे भी जिक्र किया, दोबारा जिक्र करने का मकसद है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए. Resist the pressure potential. Thus, within the bodies of higher animals, the tissue fluid maintain. ये मैंने बताया आपको पहले भी पीछे कि ये बहुत अहम है. Tissue fluid maintain at the same water potential called isotonic as the cell solution. ये बचाते हैं सेल को बस्ट करने के लिए. ये बहुत अहम मैकेनिज्म है एनिमल सेल्स के अंदर, वरना वो सेल फट जाए सारे. एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. देखिए ये बात हो रही है. ये पीछे जो अभी जिक्र किया ना, इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन एन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसकी बात कर रहे हैं. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पानी, वाटर कमिंग आउट ऑफ द प्लांट सेल, water coming out of the cell, water from the cell coming out, and cell becomes plasmolized. जो पीछे बात की है, a plant cell is placed in hypertonic solution. क्या हो रहा है यहां पर, a plant cell is placed in concentrated solution or hypertonic solution. There is a net movement of water out of the cell. Net movement of water out of the cell from plant cell. This is a plant cell, and water is coming out of the plant cell. Water is coming out of the cell, and the cell become plasmolized, and the process is known as plasmolysis. Out of the cell, as a result of the cell become flaccid, flaccid. Under such condition, the cytoplasm with its plasma membrane shrinks from the cell wall. This condition is called plasmolysis. The cell is become plasmolized. The process is known as plasmolysis. In hypertonic solution, plant cell in an hypertonic solution, plant cell is plasmolized. These are the few references which are used during this lecture. इन रेफरेंसेस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई. एक्नॉलेजमेंट के तौर पे रेफरेंसेस का देना ज़रूरी है. मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में रेफरेंसेस देता रहा हूँ. जो स्लाइड तस्वीर यूज़ हुई हैं, इन तमाम रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. एक्नॉलेजमेंट के तौर पे इन रेफरेंसेस का देना ज़रूरी है.
देना चाहिए रेफरेंसेस. Thanks for watching this video lecture. The students are always welcome to ask any question regarding this lecture. I will try to answer all question. हमेशा से मैं अपने लेक्चर के आखिर में ये स्लाइड लगाता हूँ कि और स्टूडेंट से हमेशा से मैं कहता हूँ कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो इस लेक्चर से मुतालिक या किसी और टॉपिक से मुतालिक बायोलॉजी के आपकी बुक से वो ज़रूर करें. इंशाल्लाह मैं तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा. उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे. आप कोई भी सवाल है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें. आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.